بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، ڈیزل 7 روپے اور پیٹرول کی قیمت 1 روپے فی لیٹر بڑھ گئی۔ 7 روپے اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 267 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 1 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ پیٹرول کی نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 12 بجتے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ اور اب بات کریں گے ایف پی آر کو جنوری میں 80 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا۔ ایف پی آر ذرائع کے مطابق جنوری میں ایف پی آر کو 956 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف دیا گیا تھا، تاہم جنوری میں 872 ارب سے زائد کا ریونیو جمع کیا گیا۔ جولائی سے جنوری 7 ماہ میں 6496 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا۔ ایف پی آر کا جولائی سے جنوری ٹیکس ہدف 6964 ارب روپے تھا۔ جولائی سے جنوری ریونیو شارٹ فال 465 ارب روپے سے زائد ہو گیا ہے۔ ماہانہ بنیاد پر ایف پی آر ٹیکس محصولات میں 29% گروتھ ہوئی۔ سالانہ بنیاد پر 7 ماہ کے دوران محصولات میں 26% اضافہ ہوا۔ اور اب بات کریں گے یورپی یونین کا پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس کے حوالے سے اہم اعلامیہ میں کہا گیا ہے جی ایس پی پلس کے موجودہ مانیٹرنگ سائیکل کے وسط مدت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان کو اپنے اصلاحاتی راستے پر سفر جاری رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پاکستان نئے جی ایس پی پلس ضابطے کے تحت دوبارہ درخواست کی تیاری کر رہا ہے۔ جی ایس پی پلس کے تحت تجارتی فوائد کے انحصار مسائل کی فہرست حل کرنے میں پیش رفت پر ہے۔ جی ایس پی پلس کے لیے انسانی حقوق اور ٹھوس اصلاحات ضروری ہیں۔ احتجاج کی آڑ میں تشدد حکومت کو سختی کرنے کا جواز دیتا ہے۔ پی ٹی آئی 26 نومبر جیسا راستہ اختیار کرتی ہے تو رد عمل آئے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو۔ یہ وائلنس کریں گے تو پھر گورنمنٹ کو جواز فراہم کرے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سختی کرے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی میں آ رہا ہوں، سر پہ میں نے کفن باندھا ہوا ہے، بندوق میرے ہاتھ میں ہے، جنازے کا میں نے کہہ دیا گھر والوں کو کہ میرا پڑھ دیجیے گا، تو پھر آپ کا کوئی انتظار پھولوں کا ہار لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا، آگے سے بھی کوئی ڈنڈا یا بندوق لے کے کھڑا ہوگا۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر تو ان کا انتخاب انہوں نے کیا، انہوں نے ان کا نام پیش کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ ایگری کیا تھا۔ اس مرتبہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، کوئی نام گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہو، یہ ایگری کر جائیں، یا ان کی طرف سے ہو تو ہم ایگری کر جائیں، لیکن اس کے لیے ایک ماحول ضروری ہے۔ ایک لیجسلیشن ہوئی ہے، اب ریٹائرمنٹ کی صورت میں اس وقت تک جب تک کہ کوئی نیا چیف الیکشن کمشنر الیکٹ یا سلیکٹ ہو کے ان کی جگہ نہیں لے گا، اوتھ نہیں لے گا، تو اس وقت تک وہ کام کرتے رہیں۔ اب اس وقت پوری جوڈیشری کا پورا کنٹرول، تمام پاورز آف دا جوڈیشری آر ویسٹڈ ان جوڈیشل کمیشن۔ جوڈیشل کمیشن میں یا پارلیمنٹ بیٹھی ہے یا جوڈیشری بیٹھی ہے، بار کا نمائندہ ہے، وہاں پہ 40% کا تو کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ ویلکم بیک۔ اور بات کریں گے سندھ میں 20 گریڈ کا آفیسر یونیورسٹیز کا وائس چانسلر بن سکے گا۔ اساتذہ کا احتجاج نظر انداز، صوبائی اسمبلی نے بل منظور کر لیا۔ کثرت رائے سے منظور بل کے مطابق سول سوسائٹی کے نمائندے، ادیب اور دانشور بھی وائس چانسلر بننے کے اہل ہوں گے۔ اپوزیشن نے بل منظوری کے خلاف احتجاج کیا۔ شور شرابے سے ایوان میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وزیر اعظم بلاول کا نعرہ لگانے والے سن لیں، وزارت عظمیٰ کا راستہ ایم کیو ایم کے دروازے سے ہو کر گزرے گا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کے پیپلز پارٹی پر تاک کروار۔ نامعلوم افراد سے شروع ہونے والی ایم کیو ایم کی سیاست اب نامعلوم ترجمان پر آ گئی۔ سیاسی جماعتوں کے ترجمانوں کے نام ہوتے ہیں، مافیاز کے نہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں بلاول بھٹو کے خلاف ہرزہ سرائی کرو گے تو ہر جیالہ پیپلز پارٹی کا ترجمان بن کر بات کرے گا۔ ترجمان سندھ حکومت تحسین عابدی کہتی ہیں ایم کیو ایم ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے جھوٹ اور الزام تراشی کا سہارا لے رہی ہے۔ کرپشن کا راگ لاپنے والے پہلے اپنا سیاہ ماضی پر نظر ڈالیں۔ بوری بند لاشوں اور بھتہ خوری کی تاریخ سب جانتے ہیں۔ جو کراچی کو یرغمال بناتے رہے وہ کرپشن پر لیکچر دے رہے ہیں۔ سندھ حکومت کو تانا دینے والے پہلے اپنے دور کی لوٹ مار کا حساب دیں۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن کی فیکٹری میں ویلڈنگ کے دوران آگ لگنے کا واقعہ۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے کے زخمی 5 مزدوروں میں سے ایک اسپتال میں دم توڑ گیا۔ واقعہ فیکٹری میں ویلڈنگ کے دوران گیس لیکیج سے آگ لگنے کے باعث ہوا۔ ٹیکسٹائل فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ شام 5 بجے کے قریب پیش آیا۔ فیکٹری انتظامیہ نے پولیس کو حادثے سے لاعلم رکھا۔ کراچی کے 7 سال کے سالم کے قتل کے ملزم ابھی تک نہ مل سکے۔ تفتیشی پولیس نے مقتول کی رہائشی بلڈنگ اور علاقے میں سرچ آپریشن کیا۔ پولیس نے بتایا مدرسے کے محتمے اور چوکیدار کے کمروں کی بھی تلاشی لی گئی۔ خواتین اہلکاروں کی مدد سے کئی فلیٹس کے مکینوں سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی۔
सारिम 7 जनवरी को लापता हुआ, 18 जनवरी को पानी के टैंक से लाश मिली। कराची के इलाके गार्डन से लापता होने वाले 2 कमसिन बच्चे 2 हफ्ते से जायद गुजरने के बाद भी तलाश न किया जा सके। अहले खाना एहतजाज करते हुए सिंध असेंबली पहुंच गए। सलमान लोधी की रिपोर्ट। सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करते ये हैं कमसिन अलियान और रजा के अहले खाना। 18 दिन हो गए बच्चों को, इनको बोला हमारे बच्चों को बाजियाब करो, ढूंढ के दो, आज के दिन हमारे बच्चे चाहिए हमें। गार्डन वैसे लापता होने वाले 5 साल अलियान और 6 साल रजा का ताहाल कुछ पता न चल सका। बच्चों की याद में तड़पती माँ कहती है न जाने बच्चे किस हाल में होंगे। बच्चे चाहिए, अब हमसे सब्र नहीं हो रहा है। 18 दिन गुजर चुके हैं मगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा। इस मुल्क में हम लावारिस हैं, हमारे बच्चों की कोई कदर नहीं है। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, अपने बच्चे मांग रहे हैं। आज 18 दिन हो चुके हैं, हमें हमारे औलाद निकाल के दो। अलियान के वालिद कहते हैं पुलिस रोज बच्चों की तलाश के मुतालिक आगाही तो देती है लेकिन बच्चों को ढूंढने में नाकाम है। हम इंतजार में आए कि हमारे पास कोई आएगा, हमारा मुतालबों को सुनेगा और हमारे बच्चों को ढूंढने में हमारा मदद। अभी तक कोई भी नहीं आया। हर जगह में हम लोगों ने एहतजाज किया है मगर कोई बच्चे अभी तक मालूम नहीं है। मुजाहिरीन ने वजीर आला सिंध से अपील की कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। कैमरामैन मुस्तफा महराज के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। सिंध असेंबली ने जामियात से मुतालिक तरमीमी बिल एन उस वक्त मंजूर किया जब असातिज़ा इस बिल के खिलाफ सिंध असेंबली बिल्डिंग के सामने एहतजाज कर रहे थे। ये बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। असातिज़ा कहते हैं तरमीम बिल काबिल कबूल नहीं, अदालतों से रुजू करेंगे। सिंध भर की जामियात में क्लासेस का बाइकआउट जारी है। अनवर खान की रिपोर्ट। असेंबली में जामियात से मुताल्लिक तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ असातिज़ा ने सिंध असेंबली के सामने एहतजाज किया। असातिज़ा जिस वक्त सिंध असेंबली के सामने एहतजाज कर रहे थे एन उसी वक्त सिंध असेंबली के अरकान ने कसरत राय से बिल की मंजूरी दी। असातिज़ा कहते हैं सिंध भर की जामियात में एहतजाज और क्लासों के बाइकआउट का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान का आइन आपको एहतजाज का एक आइनी हक देता है और उस एहतजाज को हम जो जारी रखेंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम अदालत जाने का भी इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह इस कानून को लेकर अदालत में जाके स्टे लेने की कोशिश करेंगे। असातिज़ा कहते हैं जामियाती खुदमुख्तारी के लिए कानूनी जद्दोजहद जारी रहेगी। सब खून मारा गया एक लिहाज से, एकदम से इसको अनाउंस करके और वो किया। अब हम अपने तौर पे ये चीज़ें देख रहे हैं। फपवासा सिंध का कल इजलास भी है और हमारी कोशिश ये होगी कि इसको एक तो ये कि लिटिगेशन में जाएं और साथ साथ मुशावरत के साथ इस बात का फैसला करें कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक MA पास एक अफसर शाही को आप लाके उसके सर पे बिठा दें जो नीचे सारे PhDs और पोस्ट डॉक प्रोफेसर्स को रूल करेगा। असातिज़ा का कहना था कि बिल उजरत से मंजूर किया गया। असातिज़ा के मौक़ों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। फपवासा सिंध चैप्टर और अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के मुश्तरका इजलास में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। और अब बात करें कराची में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन के 81 तालबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कॉलेज सुपरिटेंडेंट नफीस एडमिट कार्ड के पैसे लेकर फरार हो गया। प्रिंसिपल ने खुदबुद का मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR के मुताबिक 3 दिन कबल मालूम हुआ तालिबात को एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जा रहे। कॉलेज सुपरिटेंडेंट नफीस ने तालिबात से कैश रकम वसूल की। सुपरिटेंडेंट की जानिब से 9 लाख से ज्यादा रकम खुदबुद कर दी गई। रकम ADA 1, 2 और 3 की इम्तिहानी फीस की मद में वसूल हुई। नफीस ने बैंक में रकम जमा नहीं कराई। अक्टूबर में वालिदैन और तालिबात के लिए नोटिस भी लगाया गया था। कॉलेज स्टाफ को नकद रकम ना दें, बैंक वॉचर प्रिंसिपल का कहना है। मजीद तालिबात की जानिब से भी शिकायत आ रही हैं। 80 से ज्यादा तालिबात इम्तिहान में शिरकत नहीं कर सकेंगी। पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत हर मैदान में अपनी सलाहियत मनवा रही है, जबकि खवातीन भी तरक्की के इस सफर में किसी से पीछे नहीं बल्कि तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। किसी भी मुल्क और माशरे की तरक्की में खवातीन का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची के मुकामी होटल में इंटरनेशनल वुमेन लीडर्स समिट मुनक्किद हुई। So I faced a number of challenges also, and I think that inspired me to promote women leadership. समिट में जद्दोजहद और मुश्किलात से लड़ने की कई कहानियां थीं। मुकर्रिरीन का कहना था कि आज पाकिस्तानी खवातीन मुल्क की बड़ी कंपनियों समेत दीगर शोबों में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। Empowering women in the for their as women entrepreneurs, providing access to finance, providing access to knowledge,
शुरा का कहना था कि खवातीन किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, अपना मुकाम रखती हैं। आज पाकिस्तानी खवातीन मुल्क की बड़ी कंपनियों के बोर्ड में शामिल हैं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़ कराची। खानपुर में शहरियों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। फयाज बलोच की रिपोर्ट देखिए। आला पंजाब और IG पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों के मसाइल के अजाले के लिए खानपुर थाना सदर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SP अरसलान ज़ाहिद ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर अजाला किया। सर्कल पुलिस ने चोर गैंग से शहरियों का लूटा गया माल, 3 ट्रैक्टर ट्रालियां, सोलर प्लेट्स और मोटरसाइकिल समेत नकदी व दीगर सामान बरामद किया। SP अरसलान ज़ाहिद ने खुली कचहरी में DSP अजहर इकबाल और सर्कल के तमाम SHOs के हमरा 3 करोड़ मालियत का माल मसरूका असल मालकान के हवाले किया। SP अरसलान ज़ाहिद का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल फौरी हल करना है। तो कुल को 3 करोड़ से ज़ायद मालियत की ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो आज रिकवर हुई और इसके अलावा जो माल मसरूका था वो मुद्दइयों के हवाले किया गया। तो हमारे रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और जो एरियाज़ हैं वो बड़े फार फ्लंग हैं, तो लोगों के लिए रहीम यार खान आना खानपुर से सच इतना इजी नहीं है। लोगों के डोर स्टेप्स पे आके कि उनकी जो भी ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस किया जाए। खुली कचहरी में मसाइल के फौरी हल होने और रिकवरी लेने पर शहरियों ने पुलिस को फूलों के हार पहनाए और सर्कल खानपुर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन हसन रजा के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज़ कानपुर। कोयटा की ठंडी हवाओं ने एक बार फिर कराची का रुख कर लिया। रात गए ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में पारा आज -5 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हल्की बारिश मुतवक्के है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, स्वात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। ARY नेटवर्क और मैट्रिमोनियल साइट कबूल है के दरमियान मफामती याददाश्त पर दस्तखत। ARY नेटवर्क की जानिब से सदर और CEO सलमान इकबाल और कबूल है कि CEO जैन मलिक ने MOU पर दस्तखत किए। मजीद देखते हैं दुबई से उबैदुल्लाह की रिपोर्ट में। ARY डिजिटल नेटवर्क और मैट्रिमोनियल साइट कबूल है के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई। ARY नेटवर्क के बानी और सदर सलमान इकबाल और कबूल है के CEO जैन मलिक ने MOU पर दस्तखत किए। कबूल इज अ वेरी कन्वेंशनल मैच मेकिंग साइट। एशियन साउथ एशियन के जो रिचुअल्स होते हैं उसके अंडर वेरी मॉनिटर्ड मैच मेकिंग साइट है, सो दैट पीपल कैन फाइंड देयर स्पाउस in a very family setting. The difference between Kabul Hai and other matchmaking sites is that we are giving them 360 solution. We are even giving wedding planners, jewelry, they can find, they can buy gold, जो हमारी South Asia के अंदर सबसे important part होता है. Everything will be in one stop shop. We are also going towards the fintech side of the Kabul website, so we will even fund and support them in financial ways for their marriage. जैन मलिक ने बताया, I wanted to say big thanks to Uncle Iqbal and Salman Bhai for trusting us, trusting our vision. ARY, the biggest media group in the whole world or Pakistan, we feel more comfortable कि अगले 6 महीने का vision or where we want to be in next 3 years can easily be done while they are on board. Different step पे हमने AI features introduce कराए हैं जो platform को बहुत secure कर रहे हैं। ARY के इश्तराक से कबूल है की रीच में मजीद इजाफा होगा। और अब बात करेंगे मुल्क में सयाहत और सकाफत के फरोग के लिए पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के 4थे एडिशन का आगाज हो गया। PIA का स्टॉल तवज्जो का मरकज बना। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा नुमाइश आबोताब से जारी है। गैर मुल्की मंदुबीन भी नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में सयाहत को फरोग देने के लिए पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के तहत 4थे एडिशन का आगाज हो गया। सूबाई वजीर सयाहत व सकाफत सैयद जुल्फकार अली शाह ने नुमाइश का इफ्तिदा किया। कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सयाहती सनत को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान के लिए, टूरिस्ट के लिए एक नया मौका है ये। पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट में खैबर पख्तूनख्वा का पवेलियन भी सजाया गया है। सूबे की सयाहत सकाफत को बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया। नुमाइश में 250 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। कौमी एयरलाइन का स्टॉल भी तवज्जो का मरकज बना। PIA जो है आपको पता है शुरू से ही पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर रही है। PIA जो है इसने हमेशा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिया है दुनिया में और इंशाल्लाह PIA दोबारा ग्रो करेगी। हमारे न्यू सेक्टर्स भी स्टार्ट हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हम और भी सेक्टर्स हमारे खुलेंगे और इंशाल्लाह ताला
आप यही को और बुलंदियों पे देखेंगे। हर मुश्किल वक्त में कौमी एयरलाइन हमेशा अपनी कौम के साथ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का हमेशा हमारी तरफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही आता है। मुल्की सयाहत व सकाफत को फरोग देने के लिए मुल्की व गैर मुल्की एयरलाइंस, होटल्स ग्रुप समेत सयाहती इदारे इस नुमाइश का हिस्सा हैं। कैमरामैन इमाद के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज कराची। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 3 रोज़ा लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल एक्सपो सेंटर में शुरू हो गया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में हुकूमत के नुमाइंदों, सनतकारों, ताजरों, मुकामी और गैर मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मजहर इकबाल। तो सेंटर में 3 रोज़ा लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल शुरू हो गया, जिसका इफ्तिताह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी और पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब सादिया तैमूर राना ने किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू जरशाद कहते हैं कि 3 रोज़ा लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल से कारोबारी माहौल में बेहतरी आएगी। तमाम इंडस्ट्री को, तमाम ट्रेडर्स को, तमाम वर्कर को इस एक्टिविटीज़ से मैं समझता हूँ कम से कम 10 अरब रुपए की एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी, जो लाहौर के लिए, और इससे कम से कम 2 अरब रुपया गवर्नमेंट को टैक्स भी जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब सादिया तैमूर राना का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, खुराक, ज्वेलरी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, फैशन और लाइफस्टाइल, कॉस्मेटिक्स, क्राकरी, होम अप्लायंसेज और रियल एस्टेट स्टॉल्स काबिले नुमाइश हैं। 3 रोज़ा तकरीब के अंदर आपके बहुत सारे जो मेंबरान हैं वो अपना अपना जो उनकी प्रोडक्ट हैं उसको शोकेस कर सकेंगे, और इससे सरमायाकारी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल शहर में तजारती सरगर्मियों में तेजी लाने के साथ साथ बैनुल अक़वामी बरादरी को लाहौर की सकाफत, विरसे और तारीखी अहमियत से भी रोशनास कराएगा। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।